Hello students, today we will start with a very important chapter, that is HDA, halogen derivatives of alkanes. Halogen derivatives of alkanes and haloarenes, it comes for 3 to 4 marks in the paper, and after such a long time we are meeting on YouTube, correct? Okay, so from now onwards we begin a very simple journey of chemistry and we start with a very important chapter, that is HDA, and after this we will continue with the video and one by one we will complete the chapter in detail. Have you understood? Okay, now what is HDA? What is the definition of HDA? The replacement of one or more hydrogen atom of hydrocarbon, whether it is aromatic or aliphatic, by equal number of halogen results in the formation of haloalkanes or haloarenes, are called halogen derivatives of alkanes or haloarenes. Now, example, what is this? CH4. What is CH4? Methane. इसमें मैंने ऐड किया Cl2, क्लोरीन. इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरीनेशन. ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू. व्हाट इज दिस H म्यू? सनलाइट और यूवी लाइट. तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा Cl से. अब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 4, और ये क्लोरीन Cl2, तो क्या निकल जाएगा? HCl. इसमें से एक H जाएगा, इसमें से एक Cl जाएगा, क्या बच गया? CH3Cl. अंडरस्टूड? यहां से एक Cl, H निकल गया और HCl बाहर निकल गया बाय प्रोडक्ट, और क्या बच गया? CH3Cl. मतलब वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन halogen atom. Equal number of hydrogen is replaced by equal number of halogen atom. This is the first example. Second example, C2H6 plus Cl2. क्या होगा प्रोडक्ट? ध्यान से देखो, C2 जो भी हाइड्रोजन रहेगा ना, जितना उसको एक कम कर देगा. यहाँ पर ये 6 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 Cl. वापस प्रोडक्ट क्या निकलेगा? HCl. इस दोनों प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरीनेशन. व्हाट इज क्लोरीनेशन? एडिशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल. ये तो हो गया मेरा, ये दोनों जो मैंने एग्जांपल लिया है ये एलिफेटिक एग्जांपल है, एलिफेटिक. नाउ थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग. व्हाट इज दिस? बेंजीन. इसमें मैंने क्या ऐड किया? Cl2. यहां पर क्या लगा हुआ है? एक H. क्या होगा रिएक्शन? ये H जाएगा Cl के साथ, क्या निकल जाएगा? HCl. और क्या बच गया? Cl. व्हाट इज दिस? क्लोरोबेंजीन. व्हाट इज दिस? क्लोरोबेंजीन. इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड. इसका नाम क्या है? इथाइल क्लोराइड. हैव यू अंडरस्टूड? मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, and what is this? Chlorobenzene. Okay, copy this. Okay, next students, what are the applications of HDA? What are the applications? मतलब हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? What is the reason for that? So the first application is they have wide industrial and medical applications, such as chlorine containing compound, that is any antibiotic, that is chloramphenicol, effective in typhoid fever. मतलब वो फीवर में काम आता है. Iodine containing hormone known as thyroxine, its deficiency in the body cause a disease called goiter. Goiter आपको पता होगा, थायराइड की जिसको बीमारी होती है, थायराइड. Next, chloroquine is used in the treatment of malaria. Next, halogenated solvents are used for cleaning semiconductors, chips, etc. So these are some applications of this chapter, that is halogens. Okay, so note down this.
Now next we will start with the classification of haloalkanes and haloarenes. Classification of haloalkanes. Now haloalkanes क्या होते हैं? अभी हम लोगों ने देखा haloalkanes CH4, इसमें क्या डाला हम लोग ने? Cl2, क्या देगा? CH3Cl plus HCl, correct? What is this CH3Cl? This is nothing but haloalkanes. इसको halo बोलते हैं और ये alkanes. Okay, examples: CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, करेक्ट? ये सब क्या है मेरे? haloalkanes. Have you understood? अब इसका हम लोग क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन. कैसे क्लासिफिकेशन कैसे होगा ध्यान से देखो. ये तो सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल था. They are classified into first monohalogenation या monohalogenated. What is the meaning of mono? Mono means which contains single halogen. Which contains single halogen. कैसे? Example: CH3Cl, CH3, CH2, Br. करेक्ट? हाइड्रोजन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? बाय लेटर X, एंड X इज नथिंग बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन. नेक्स्ट CH3, C, CH3, CH2, Br. ये सब क्या है मेरे? मोनोहैलोजिनेशन. Why it is called as monohalogenated? Because it contains one halogen atom. Next, dihalogenation. Dihalogenated. What do you mean by dihalogenated? Which contains two halogen atoms. इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of monohalogenation? What is the meaning of dihalogenation? Monohalogenation का मतलब होता है in this one hydrogen is replaced by one halogen. This is monohalogen. What is dihalogen? Two hydrogen is replaced by two halogen. Example: you can write a definition. What is monohalogen? These are the halogens in which one hydrogen is replaced by one halogen, and dihalogenation means in this two hydrogen is replaced by two halogens. Example: CH2 Cl2, CH2 Br2. इसको आप लोग स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसा, करेक्ट? इसको ऐसा कुछ. Have you understood? और this is also dihalogenated, correct? So these are some examples of dihalogenation. Okay, now we will see the names of these molecules. हम लोग आगे देखेंगे नेम. पहले हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे नाम देखते हैं. फिलहाल आप इसको देख लो, मोनोहैलोजिनेटेड एंड डायहैलोजिनेटेड. Now next we will start with the trihalogenated compound. What is my trihalogenation? These are the compounds in which three hydrogen atom is replaced by three halogens. Example: CHCl3, CHBr3, CHI3. What is CHCl3? आपको पता होगा, क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म. Okay, so this is the example of trihalogenated compounds. Next, tetrahalogenated. What do you mean by tetrahalogenated? In which all the hydrogen is replaced by halogens. Example: CCl4,
CBr4, CI4. What is CCl4? Carbon tetrachloride. CBr4 carbon tetrabromide. CI4 carbon tetraiodide. Okay. Now, next we will start with the nomenclature of the compounds. That is alkyl halide, common name and its IUPAC name. Now, you might be aware of this word nomenclature. Nomenclature का मतलब क्या होता है? नामकरण. करेक्ट. हम लोग क्या देखेंगे? कॉमन नेम भी देखेंगे और IUPAC नेम भी देखेंगे. What is the full form of IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemistry. Now, the first compound is CH3CH2Cl. इसका कॉमन नाम क्या होगा? ध्यान से देखो. कॉमन नाम कैसे लिखते हैं हम लोग? कॉमन नेम इज नथिंग बट अल्काइल हालाइड. व्हाट इज द कॉमन नेम? अल्काइल हालाइड. मतलब अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड हालाइड. जो भी हाइड्रोजन रहेगा वो उसको हालाइड लिखेंगे. अब ये क्या है? दो कार्बन है तो क्या होता है? CH3CH3. व्हाट इज दिस? इथेन. अब इसमें मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो ये क्या हो गया? इथाइल. करेक्ट. तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल क्लोराइड. व्हाट इज दिस? इथाइल क्लोराइड. नेक्स्ट ये क्या होगा? इसका आईपीसी ने, सॉरी कॉमन नेम प्रोपाइल. ये क्या है? एफ है ना. एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोराइड. प्रोपाइल फ्लोराइड. नेक्स्ट ये क्या है? व्हाट इज दिस? CH3CH CH3I. ये सेकेंड कार्बन का अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे आइसो प्रोपाइल. प्रोपाइल क्यों? तीन कार्बन है. आइसो प्रोपाइल आयोडाइड. नेक्स्ट ये क्या है? CH3CH CH3 CH2Cl. कितने कार्बन है? 1 2 3 4. क्या नाम होगा इसका? इसको बोलते हैं आइसो, क्योंकि यहां पर CH3 ग्रुप जो है वो सेकेंड कार्बन पर अटैच्ड है. आइसो क्या आएगा इसका नाम? ब्यूटाइल. ब्यूटाइल क्यों? चार कार्बन है. आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड. अब यहां पर इन दोनों में फर्क है. यहां पर Cl सेकेंड कार्बन पर अटैच्ड है तो यहां पर वर्ड क्या लगाएंगे? सेक. ओके. अब यहां पर आप बोलेंगे सर आपने यहां पर सेक क्यों लगाया? ये तीन कार्बन रहेगा ना तो आइसो वर्ड लगाएंगे, और अगर तीन से ज्यादा हो गया और अगर कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन वगैरह अगर सेकेंड कार्बन पर अटैच्ड है तो वहां पर क्या लगाएंगे? सेक लगाएंगे. तो क्या होगा इसका नाम? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड. हैव यू अंडरस्टूड? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड. सो दिस इज नथिंग बट विच नेम? कॉमन नेम. अब इसका क्या देखेंगे हम लोग? IUPAC नेम. अब IUPAC कैसे देखेंगे? आपको पता है व्हाट इज द IUPAC रूल्स? फर्स्ट रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन. दिस इज द फर्स्ट रूल. व्हाट इज द सेकेंड रूल? नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम वेयर द हाइड्रोजन इज स्टार्टिंग. मतलब जहां से हाइड्रोजन स्टार्ट हो रहा है आपको वहां से नंबरिंग, मतलब जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपका मेन जो भी ग्रुप अटैच्ड है अगर वो वहां पर है तो आपको वहां से स्टार्ट करना है. करेक्ट. दिस इज द सेकेंड रूल. व्हाट इज द थर्ड रूल? फंक्शनल ग्रुप should get the lowest number. उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. एंड फोर्थ रूल इज नाम को हमें अल्फाबेटिकली लिखना है. कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकली लिखना है. ओके. हम लोग देखते हैं इसको. अब ध्यान से देखो IUPAC में कैसे लिखेंगे. इसको लिखते हैं IUPAC में हेलो अल्केन्स. क्या बोलते हैं इसको? हेलो अल्केन्स. ओके. अब ये क्या है? Cl क्लोरीन. तो क्या बोलेंगे इसको? क्लोरो. क्लोरो. कितने कार्बन है? दो है तो इथेन. व्हाट इज दिस? क्लोरो इथेन. क्लोरो इथेन.
ओके फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट ये क्या है? एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोरो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। व्हाट इज दिस? फ्लोरो प्रोपेन। फ्लोरो प्रोपेन। अब यहां पर फर्स्ट रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। कितने कार्बन की है? 3 कार्बन। और सेकेंड पे कौन अटैच्ड है? आयोडीन। तो उसका नाम क्या होगा? 2 आयोडो। 2 आयोडो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है ना। 2 आयोडो प्रोपेन। व्हाट इज दिस? 2 आयोडो प्रोपेन। यहां पे फर्स्ट रूल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। और अपने को नंबरिंग कहां से करना है? जहां से हैलोजन आएगा वहां से नंबरिंग करना है, बिकॉज हैलोजन को कम नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग 1 2 3। करेक्ट। अब यहां पर फर्स्ट पे कौन है? क्लोरीन। और सेकंड में कौन है? मिथाइल। अब अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? सी आता है कि एम आता है? सी आता है। तो कैसे लिखेंगे? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। नेक्स्ट लास्ट का नाम क्या होगा? लास्ट वाले का नाम क्या होगा? कैसे लिखेंगे इसको? फर्स्ट रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन की है? 1 2 3 4। अब नंबरिंग यहां से करेंगे कि यहां से करेंगे? ऑब्वियसली यहां से करेंगे। क्यों? अगर हम लोग नंबर यहां से करते हैं सो 1 2 3, इसको 3 पोजीशन आ रही है, और यहां से करें तो 1 2, इसको सेकंड पोजीशन आ रही है, तो कहां से करेंगे? 1 2 3 एंड 4। तो सेकंड पे कौन है? क्लोरीन। तो इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो क्या नाम होगा उसका? 2 क्लोरो ब्यूटेन। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। सो दिस इज नथिंग बट द IUPAC नेम। और यूजुअली एग्जाम में आपको IUPAC ज्यादा पूछता है, और आपको जब प्रोडक्ट आप बनाएंगे रिएक्शन का तो आपको IUPAC लिखना होता है। हैव यू अंडरस्टूड? तो हम लोग आगे और एग्जांपल्स देखते हैं IUPAC से रिलेटेड। फिलहाल आप इतना कॉपी करके लीजिए।